قاضی فائز عزت رائے میں یہ 5 رکنی لارجر بینچ جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ مخدوم علی خان جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ کروسٹم پر موجود ہیں، وہ دلائل دے رہے ہیں، اور مخدوم علی خان جو ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جولائی 2022 کو نیب ترامیم کے خلاف پہلی سماعت ہوئی تھی، جس پر جسٹس عطر مین اللہ کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ کل کتنی سماعتیں ہوئیں، جس پر مخدوم علی خان کی جانب سے بتایا گیا کہ اس کیس کی کل سماعتیں 53 ہوئی تھی، اور جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اتنا طویل عرصے تک کیس کیوں چلا، کیا آپ نے کیس کو طول دیا، جس پر وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ زیادہ وقت دلائل میں درخواست گزار نے لیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اس موقع پر ریمارکس دیے ہیں کہ 1999 میں نیب قانون بنانے میں کتنا وقت لگا تھا، جس اٹارنی جنرل نے اس موقع इंसाफ भी है ज़्यादा न कम। टेस्ट हो या हेल्थ, मीज़ान इम्यूनिटी बूस्ट करे और दे आपको हेल्दी बोन्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स का परफेक्ट बैलेंस। इस मीज़ान में अच्छे लगते हैं। जो है 19 जुलाई 2022 को हुई थी، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس سے قبل جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب ترامیم کیس کا جو حکم نامہ ہے وہ بھی طلب کیا ہے، اور بانی پی ٹی آئی جو ہیں اس وقت اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک پر موجود ہیں، اور ہلکے نیلے رنگ کی شرٹ وہ انہوں نے پہنی ہوئی ہے، لیکن جو لائیو سٹریمنگ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہدایات جاری نہیں کی، اسی وجہ سے اس کیس کی لائیو سٹریمنگ نہیں ہو سکی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اور اس میں جو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود ہے۔ بالکل سیگم، یہ بھی بتائیے گا کہ کمرہ عدالت میں اس وقت سماعت جاری ہے، موجود کون کون ہے؟ جی دیکھیں، روسٹرم پر اس وقت اٹارنی جنرل آف پاکستان اور حکومتی وکیل مخدوم علی خان جو ہیں وہ دلائل دے رہے ہیں، لیکن جو کمرہ عدالت ہے وہ ترمین اللہ جسٹس حسن اظہر رضوی بھی 5 رکنی لارجر بینچ میں شامل ہیں۔ ہائی کورٹ میں زیر التوا درخواست سماعت کے لیے منظور ہوئی۔ جسٹس ترمین اللہ کی جانب سے یہ سوال کیا گیا، جی اسے قابل سماعت قرار دے دیا گیا تھا۔ وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے دلائل میں کہا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب ترمیم کے خلاف کیس کا مکمل ریکارڈ منگوا لیں۔ چیف جسٹس کی جانب سے ہدایات جاری کی گئیں۔ زیگم نقوی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے سماعت کا احوال جان لیتے ہیں۔ جی زیگم نقوی، بتائے گا اس وقت عدالت میں کیا سماعت ہو رہی ہیں؟ بالکل، نیب ترامیم کا عدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلوں پر اس وقت سپریم کورٹ میں سماعت جاری ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عزت رائے میں یہ 5 رکنی لارجر بینچ جو اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ مخدوم علی خان جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ کروسٹم پر موجود ہیں، وہ دلائل دے رہے ہیں، اور مخدوم علی خان جو ہیں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جولائی 2022 کو نیب ترامیم کے خلاف پہلی سماعت ہوئی تھی، جس پر جسٹس عطر مین اللہ کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا کہ کل کتنی سماعتیں ہوئیں، جس پر مخدوم علی خان کی جانب سے بتایا گیا کہ اس کیس کی کل سماعتیں 53 ہوئی تھی، اور جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اتنا طویل عرصے تک کیس کیوں چلا، کیا آپ نے کیس کو طول دیا، جس پر وکیل مخدوم علی خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ زیادہ وقت دلائل میں درخواست گزار نے لیا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اس موقع پر ریمارکس دیے ہیں کہ 1999 میں نیب قانون بنانے میں کتنا وقت لگا تھا، جس اٹارنی جنرل نے اس موقع پر کہا کہ مارشل لا کے فوری بعد 1 ماہ کے اندر نیب قانون بن گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ تو بڑا تعجب ہے کہ نیب ترامیم کے 53 سماعتوں تک چلایا گیا ہے۔ مخدوم علی خان کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ مرکزی کیس کی مجموعی طور پر 53 سماعتیں ہوئی تھی، اور 19 جولائی 2022 کو درخواست پر فریقین کو نوٹس ہوئے تھے، اور اس پر جو رجسٹرار آفس کا یہ اعتراض بھی خارج کیا گیا تھا، چونکہ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تھا کہ درخواست دار نے کسی اور متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا۔ جسٹس عطر مین اللہ کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اس وقت رجسٹرار آفس کے اعتراض بھی تھے۔
मखदूम अली खान ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर पहली समाअत जो है 19 जुलाई 2022 को हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे कबल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम केस का जो हुक्मनामा है वो भी तलब किया है और बानी पीटीआई जो है इस वक्त अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और हल्के नीले रंग की शर्ट वो उन्होंने पहनी हुई है, लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत जारी नहीं की, इसी वजह से इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं इस केस की समाअत कर रहे हैं और इसमें जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है। और ये भी बताइएगा कि कमरा अदालत में इस वक्त समाअत जारी है, मौजूद कौन कौन है? जी देखिए, रोस्टम पर इस वक्त अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और हुकूमती वकील मखदूम अली खान जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं, लेकिन जो कमरा अदालत है अब वो तरमीनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल हैं। हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हुई। जस्टिस तरमीनुल्लाह की जानिब से ये सवाल किया गया, जी इसे काबिल समाअत करार दे दिया गया था। वकील मखदूम अली खान की जानिब से दलाइल में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा लें। चीफ जस्टिस की जानिब से हिदायत जारी की गई। जैगम नकवी हमारे साथ है, उनसे समाअत का अहवाल जान लेते हैं। जी जैगम नकवी बताएगा, इस वक्त अदालत में क्या समाअत हो रही हैं? बिल्कुल, नैब तरामीम का अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायद इब्राहिम में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा है। मखदूम अली खान जो हैं वो इस वक्त जो है वो रोस्टम पर मौजूद हैं, वो दलाइल दे रहे हैं और मखदूम अली खान जो हैं उनसे उनकी जानब से ये बताया गया कि जुलाई 2022 को नैब तरामीम के खिलाफ पहली समाअत हुई थी, जिस पर जस्टिस अतर मीनल्ला की जानब से ये इस्तफसार किया गया कि कुल कितनी समाअतें हुई, जिस पर मखदूम अली खान की जानब से बताया गया कि इस केस की कुल समाअतें 53 हुई थी और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना तवील अरसे तक केस क्यों चला, क्या आपने केस को तूल दिया, जिस पर वकील मखदूम अली खान की जानब से ये कहा गया कि ज्यादा वक्त दलाइल में दरखास्त गुजारने लिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए हैं कि 1999 में नैब कानून बनाने में कितना वक्त लगा था। जिस अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर कहा कि मार्शल लॉ के फौरी बाद 1 माह के अंदर नैब कानून बन गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया कि ये तो बड़ा ताज्जुब है कि नैब तरामीम केस 53 समाअतों तक चलाया गया है। मखदूम अली खान की जानब से अदालत को बताया गया कि मरकजी केस की मजमूई तौर पर 53 समाअतें हुई थी और 19 जुलाई 2022 को दरखास्त पर फिकैन को नोटिस हुए थे और इस पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस का ये एतराज भी खारिज किया गया था, चूंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया था कि दरखास्तदार ने किसी और मुतलका फोरम से रजू नहीं किया। जस्टिस अतर मीनल्ला की जानब से ये रिमार्क्स दिए गए कि बानी पीटीआई की दरखास्त पर इस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज भी थे। मखदूम अली खान ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर पहली समाअत जो है 19 जुलाई 2022 को हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे कबल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम केस का जो हुक्मनामा है वो भी तलब किया है और बानी पीटीआई जो है इस वक्त अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और हल्के नीले रंग की शर्ट वो उन्होंने पहनी हुई है, लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत जारी नहीं की, इसी वजह से इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं इस केस की समाअत कर रहे हैं और इसमें जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है। और ये भी बताइएगा कि कमरा अदालत में इस वक्त समाअत जारी है, मौजूद कौन कौन है? जी देखिए, रोस्टम पर इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और हुकूमती वकील मखदूम अली खान जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं, लेकिन जो कमरा अदालत है अब वो तरमीनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल हैं। हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हुई। जस्टिस तरमीनुल्लाह की जानिब से ये सवाल किया गया, जी इसे काबिल समाअत करार दे दिया गया था। वकील मखदूम अली खान की जानिब से दलाइल में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा लें। चीफ जस्टिस की जानिब से हिदायत जारी की गई। जैगम नकवी हमारे साथ है, उनसे समाअत का अहवाल जान लेते हैं। जी जैगम नकवी बताएगा, इस वक्त अदालत में क्या समाअत हो रही हैं?
बिल्कुल नैब तरामीम का अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायद इसक सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा है। मखदूम अली खान जो हैं वो इस वक्त जो है वो क्रोस्टम पर मौजूद हैं, वो दलाइल दे रहे हैं और मखदूम अली खान जो हैं उनसे उनकी जानब से ये बताया गया कि जुलाई 2022 को नैब तरामीम के खिलाफ पहली समाअत हुई थी, जिस पर जस्टिस अतर मीनल्ला की जानब से ये इस्तफसार किया गया कि कुल कितनी समाअतें हुई, जिस पर मखदूम अली खान की जानब से बताया गया कि इस केस की कुल समाअतें 53 हुई थी और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना तवील अरसे तक केस क्यों चला, क्या आपने केस को तूल दिया, जिस पर वकील मखदूम अली खान की जानब से ये कहा गया कि ज्यादा वक्त दलाइल में दरखास्त गुजार ने लिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए हैं कि 1999 में नैब कानून बनाने में कितना वक्त लगा था। जिस अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर कहा कि मार्शल लॉ के फौरी बाद 1 माह के अंदर नैब कानून बन गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया कि ये तो बड़ा ताज्जुब है कि नैब तरामीम के 53 समाअतों तक चलाया गया है। मखदूम अली खान की जानब से अदालत को बताया गया कि मरकजी केस की मजमूई तौर पर 53 समाअतें हुई थी और 19 जुलाई 2022 को दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस हुए थे और इस पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस का ये एतराज भी खारिज किया गया था। चूंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया था कि दरखास्तदार ने किसी और मुतलका फोरम से रजू नहीं किया। जस्टिस अतर मीनल्ला की जानब से ये रिमार्क्स दिए गए कि बानी पीटीआई की दरखास्त पर इस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज भी थे। मखदूम अली खान ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर पहली समाअत जो है 19 जुलाई 2022 को हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे कबल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम केस का जो हुक्मनामा है वो भी तलब किया है और बानी पीटीआई जो है इस वक्त अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और हल्के नीले रंग की शर्ट वो उन्होंने पहनी हुई है, लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत जारी नहीं की, इसी वजह से इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं इस केस की समाअत कर रहे हैं और इसमें जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है। बिल्कुल सर, ये भी बताइएगा कि कमरा अदालत में इस वक्त समाअत जारी है, मौजूद कौन कौन है? जी देखिए, रोस्टम पर इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और हुकूमती वकील मखदूम अली खान जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं, लेकिन जो कमरा अदालत है वो तरमीनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल हैं। हाई कोर्ट में जेर इल्तवा दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हुई। जस्टिस अतर मीनल्ला की जानिब से ये सवाल किया गया, जी इसे काबिल समाअत करार दे दिया गया था। वकील मखदूम अली खान की जानिब से दलाइल में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरामीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा लें। चीफ जस्टिस की जानिब से हिदायत जारी की गई। सैगम नकवी हमारे साथ हैं, उनसे समाअत का अहवाल जान लेते हैं। जी सैगम नकवी बताएगा इस वक्त अदालत में क्या समाअत हो रही हैं? बिल्कुल नैब तरामीम का अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायद इसक सरबराही में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा है। मखदूम अली खान जो हैं वो इस वक्त जो है वो क्रोस्टम पर मौजूद हैं, वो दलाइल दे रहे हैं और मखदूम अली खान जो हैं उनसे उनकी जानब से ये बताया गया कि जुलाई 2022 को नैब तरामीम के खिलाफ पहली समाअत हुई थी, जिस पर जस्टिस अतर मीनल्ला की जानब से ये इस्तफसार किया गया कि कुल कितनी समाअतें हुई, जिस पर मखदूम अली खान की जानब से बताया गया कि इस केस की कुल समाअतें 53 हुई थी और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना तवील अरसे तक केस क्यों चला, क्या आपने केस को तूल दिया, जिस पर वकील मखदूम अली खान की जानब से ये कहा गया कि ज्यादा वक्त दलाइल में दरखास्त गुजार ने लिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए हैं कि 1999 में नैब कानून बनाने में कितना वक्त लगा था। जिस अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर कहा कि मार्शल लॉ के फौरी बाद 1 माह के अंदर नैब कानून बन गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया कि ये तो बड़ा ताज्जुब है कि नैब तरामीम के 53 समाअतों तक चलाया गया है। मखदूम अली खान की जानब से अदालत को बताया गया कि मरकजी केस की मजमूई तौर पर 53 समाअतें हुई थी और 19 जुलाई 2022 को दरखास्त पर फ्रीकैन को नोटिस हुए थे और इस पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस का ये एतराज भी खारिज किया गया था। चूंकि रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाया था कि दरखास्तदार ने किसी और मुतलका फोरम से रजू नहीं किया। जस्टिस अतर मीनल्ला की जानब से ये रिमार्क्स दिए गए कि बानी पीटीआई की दरखास्त पर इस वक्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज भी थे।
मखदूम अली खान ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त पर पहली समाअत जो है 19 जुलाई 2022 को हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इससे कबल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरामीम केस का जो हुक्मनामा है वो भी तलब किया है। और बानी पीटीआई जो है इस वक्त अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं और हल्के नीले रंग की शर्ट वो उन्होंने पहनी हुई है, लेकिन जो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हदायत जारी नहीं की, इसी वजह से इस केस की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो सकी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं इस केस की समाअत कर रहे हैं और इसमें जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो कमरा अदालत में मौजूद है। बिल्कुल और सैगम, ये भी बताइएगा कि कमरा अदालत में इस वक्त समाअत जारी है, मौजूद कौन कौन है? जी देखिए, रोस्टम पर इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और हुकूमती वकील मखदूम अली खान जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं, लेकिन जो कमरा अदालत है वो तरमीनुल्लाह, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी 5 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल हैं। हाई कोर्ट में जेर इल्तवा दरखास्त समाअत के लिए मंजूर हुई। जस्टिस तरमीनुल्लाह की जानिब से ये सवाल किया गया, जी इसे काबिल समाअत करार दे दिया गया था। वकील मखदूम अली खान की जानिब से दलाइल में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नैब तरमीम के खिलाफ केस का मुकम्मल रिकॉर्ड मंगवा लें। चीफ जस्टिस की जानिब से हिदायत जारी की गई। सैगम नकवी हमारे साथ है, उनसे समाअत का अहवाल जान लेते हैं। जी सैगम नकवी, बताएगा इस वक्त अदालत में क्या समाअत हो रही हैं? बिल्कुल, नैब तरामीम का अदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। चीफ जस्टिस काजी फायद इब्राहिम में ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो इस केस की समाअत कर रहा है। मखदूम अली खान जो हैं वो इस वक्त जो है वो रोस्टम पर मौजूद हैं, वो दलाइल दे रहे हैं और मखदूम अली खान जो हैं उनसे उनकी जानब से ये बताया गया कि जुलाई 2022 को नैब तरामीम के खिलाफ पहली समाअत हुई थी, जिस पर जस्टिस अतर मीनल्ला की जानब से ये इस्तफसार किया गया कि कुल कितनी समाअतें हुई, जिस पर मखदूम अली खान की जानब से बताया गया कि इस केस की कुल समाअतें 53 हुई थी और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इतना तवील अरसे तक केस क्यों चला, क्या आपने केस को तूल दिया, जिस पर वकील मखदूम अली खान की जानब से ये कहा गया कि ज्यादा वक्त दलाइल में दरखास्त गुजार ने लिया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस मौके पर रिमार्क्स दिए हैं कि 1999 में नैब कानून बनाने में कितना वक्त लगा था। जिस अटॉर्नी जनरल ने इस मौके पर कहा कि मार्शल लॉ के फौरी बाद 1 माह के अंदर नैब कानून बन गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानब से ये कहा गया कि ये तो बड़ा ताज्जुब है कि नैब तरामीम के 53 समाअतों तक चलाया गया है। मखदूम अली खान की जानब से अदालत को बताया गया कि मरकजी केस की मजमूई तौर पर 53 समाअतें हुई थी और 19 जुलाई 2022 को दरखास्त पर फिकैन को नोटिस हुए थे।